واجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واجل فرجهم. مومنات گرامی، باکمال ہے وہ پروردگار کہ جس نے کربلا کو ہمارے لیے درس ہدایت تھا. آج کی مجلس منسوب ہے کربلا کے بادشاہ سے، جس کو سخی بھی کہتے ہیں، لجپال بھی کہتے ہیں، امیر بھی کہتے ہیں. مگر جب ہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واجل فرجهم اجمعین. مگر جب ہم امام کی بارگاہ میں ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں تو پھر نہ ہم سخی کہتے ہیں، نہ ہم امیر کہتے ہیں، نہ ہم لجپال کہتے ہیں. تب ہم امام کو غریب حسین کہہ کے پکارتے ہیں. ابتدائے مجلس ہے، مگر اختتام مجلس پر ہم سب مل کر وہ مشکل کام کریں گے جو علی کی بیٹیوں نے کیا کیا تھا. اپنے غریب بھائی کو سواری پہ سوار کروایا. اس وقت جناب زینب نے بڑا یاد کیا تھا آپ کو کہ کہاں ہو میرے شیعوں، کہ جب راہوار کے قدموں سے ایک بچی لپٹی ہوئی تھی اور لپٹ کر کہہ رہی تھی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے مر جاتی ہیں بیٹیاں بیٹا جب باپ کے جنازوں پہ آتی ہیں. آسان تھوڑی تھا سکینہ کے لیے بابا کو رخصت کرنا، آسان تھوڑی تھا. کبھی کسی بیٹی کو باپ کے لاشے پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے؟ سکینہ تو وہ بیٹی ہیں جنہیں تڑپنے بھی نہیں دیا گیا ہے نا. ہمارے ہاں تو ہمیں پکڑ کے لے کے آتے ہیں، بیٹا رو لو، بیٹا دیکھ لو، آخری دیدار کر لو. مگر میری جان سکینہ تو وہ بیٹی ہیں جب روتی تھی تو گالوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا اب نہیں روں گی. اللہ جانے کیسے تسلی دی شمر نے سکینہ کو کہ اس کے بعد سکینہ نے بلند آواز میں رونا چھوڑ دیا. آج آپ سب جناب سکینہ کے مہمان ہیں، کیونکہ بیٹا ہو نہیں سکتا کہ باپ کا ذکر ہو اور بیٹیاں نہ. پتہ نہیں کس کونے میں کہاں وہ 4 سالہ نیلے رخساروں والی بچی بیٹھی ہوگی. اتنا تو یقین کر لو ہے یہیں کہیں. یہ جو تمہاری آوازیں ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بارش موجود ہے. ہم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر کر، کیونکہ اختتام پہ میں نے کہا نا کہ ذوالجناح کی زیارت ہے، اپنی عرضیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا پیش کر دو حسین کی بارگاہ میں. کیونکہ آج مولا حسین کی مجلس ہے تو سب سے پہلے واسطہ دوں گی امام حسین کو. مولا حسین آپ کو واسطہ جناب سکینہ کا. مولا حسین اپنی شہزادی کا صدقہ بار الہ کسی بیٹی کو بے وقت یتیم نہ کرے. مولا جنہیں یتیم کیا ہے ان کے آسرے سلامت رکھنا.
बारे इलाहा जिन मोमिनों पे तूने मुश्किलात डाली हैं उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। बोला कब तक हम करबला सुन सुन के रोए, बोला कब तक हम करबला को दूर से सुन के रोए। बोला कोई दिन ऐसा दिखा दीजिए कि ज़मीने करबला पे खड़े होके कहूँ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। परवरदिगार हम सबको करबला का ज़व्वार बना, परवरदिगार हम सबको चार मासूमीन का ज़व्वार बना। अल्लाह हमें सिवाय गम हुसैन कोई गम न देना। ऐ मेरे पालने वाले दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा, बारे इलाहा दुश्मनाने अज़ादारी को नीस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मालिक उलमा हक़्क़ा को तूल उम्र अता फरमा। जो जो जहाँ जहाँ मरीज हैं परवरदिगार समेत नाजिया के अल्लाह उन सबको शिफाए कामिल अता फरमा। मेरे मालिक जनाब इमाम हुसैन की परदेसन बेटी का सदका, जनाब सुगरा का वास्ता जिनके घर वाले परदेस में हैं, अल्लाह उन तमाम परदेसियों को हिफ्ज़ व अमान में रखना। ख़ुसूसन आज जो मजलिस जिस बच्ची ने कराई है अल्लाह उस बच्ची को भी परदेस में हिफ्ज़ व अमान में रखना। और मालिक हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ ज़हरा के ज़बूर में ताज़ील फरमा और हमें उनके नासिरान में शुमार फरमा। बराए कबूलियत मजलिस, बराए कबूलियत हाजात, सब मिलकर बेटा एक मर्तबा बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छे भी फराज हो तो मोमिनात गिरामी, कल हमने एक आयत मुबारका को बेशक सरनामे का नाम बेशक आयत नहीं थी, चैलेंज था खुदा। बेशक 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 चैलेंज था ना बेटा। बेशक कौन सी आयत? सूरह हाँ बोलो। सूरह सफ आयत मुबारका 8। सलामत हो। सूरह सफ आयत मुबारका 8 को हमने सरनामे का नाम बनाया। बेटा अगर हम आयत को गौर से पढ़ें, हमारा मसला पता क्या है, हमने कभी कुरान समझ के नहीं। बेशक बेशक हम कुरान को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, समझने की नीयत से नहीं पढ़ते। बेशक एक आलिम दीन का जुमला है कि जो किताब जिंदों को जिंदगी देने के लिए उतारी गई है, बेशक तुमने उस किताब को मुर्दों के लिए रखा। बेशक जब कोई मरता है तो आप कुरान पढ़ते हैं, जब किसी के साले सवाब हो तो आप कुरान पढ़ते हैं। उल्मा ने कहा अगर जिंदा लोग कुरान से रजू कर लें बेशक बेशक तो इस कुरान का इजाज, इस कुरान का मोजज़ा ये है कि वो जिंदों को कभी मरने नहीं देता। बेशक जिनकी जात का हिस्सा कुरान बन जाए ना बेटा, फिर उन्हें इतनी आदत पड़ जाती है कुरान पढ़ने की कि अगर वो नोके सिना पे भी हो तो सूरह कहफ सुनाकर, ये शियों को कहते हैं ना कि इनके यहाँ कुरान कम पढ़ा जाता है, तो भाई कम नहीं पढ़ा जाता। आपके कुरान में और हमारे में थोड़ा सा फर्क है। हमारे आपके सारे कारी एक तरफ, बेशक बेशक हमारे कारी बेशक बेशक आपके कारी जिंदगियों में पढ़ते हैं, हमारा कारी नोके सिना पे पढ़ता है। ये फर्क है। हम आशिक हैं कुरान के, हमें कुरान से दूर किया गया। हम हमें लगता है कि हम सिर्फ अरबी पढ़ लेंगे कामयाब हैं, मगर बेटा कुरान को समझ कर पढ़ना, कुरान को समझ कर समझना भी सवाब है। तो जो मैंने आयत कल पढ़ी, आयत नहीं है, चैलेंज है। बेशक और चैलेंज भी मैं और आप नहीं कर रहे हैं, बेशक अल्लाह चैलेंज खुदा कर रहा है। बेशक या आप सबका यहाँ बैठना, या आज़ादारी का होना, जगह जगह मजलिस से होना, करोड़ों ज़ायरीन का अरबईन पे होना, करोड़ों ज़ायरीन का आशूरा पे होना, और एक आम इमाम के गुलाम के जनाजे पर करोड़ों का मजमा होना। अब तक 2 करोड़ पहुँच गए बेटे। जी जी बिल्कुल अभी तक 2 करोड़ हमारे सदर, हमारे जो कौन कौन गए, प्राइम मिनिस्टर गए मेरे ख्याल से, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए अभी हमारे। तो माशाल्लाह से 2 करोड़ बंदा एक इमाम के गुलाम का जनाजा उठाने के लिए पहुंच चुका है। तो बेटे मेरी बात सुनो, फिर यह खुदा के चैलेंज के पूरा होने की दलील है कि कि अभी अगर एक अदना सा गुलाम इमाम का हो तो उसको इज्जत देने वाले इतने हैं, तो सोचो जिस दिन खुद इमाम आएंगे उनकी तौकीर अल्लाह किस तरह कराएगा। तभी तो अल्लाह ने सूरह सफ की आयत में ये चैलेंज किया है, युरीदूना, बेशक ये लोग इरादा करते हैं, बेशक
کیا ارادہ کرتے ہیں؟ لے یطفئہم کہ یہ بجھا دے. بے شک کس چیز کو بجھائے؟ چرا نور اللہ، اللہ کے نور کو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بجھا دیں. کس چیز سے؟ بے افواہہم، اپنی پھوکوں سے یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے چیلنج کر دیا. بے شک اللہ کہتا ہے تو مارتا رہے پھوکیں. واہ واہ اللہ کہتے ہیں مارتا رہے. مثال تو میں یہی دوں گی کہ بیٹے یہ جو بلب جل رہا ہے بجھا دو اس کو پھوکوں سے. واہ واہ جتنا مرضی پھونک لو اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا. بے شک. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس پہ جو کور چڑھا ہوا ہے نا وہ اسے بجھنے ہی نہیں دے گا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا میرا نور بھی پھوکوں سے تھوڑی بجھے گا. میں نے کہا اللہ تیرے نور پہ کون سا کور ہے؟ تو اللہ نے کہا وہ جو کور ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے. جب تک ولایت باقی رہے گی بے شک بے شک بے شک توحید کو کوئی مٹا نہیں سکتا. سمجھا؟ اللہ نے کہا یہ خدا کے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کر کے ہی دم لے گا. ولو کرے حل کافرون، چاہے ان کافروں کو ان مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اللہ اس نور کو پورا کر کے دم لے. بے شک بیٹا تمہارے سامنے اللہ کے چیلنج کی دلیل ہے. بے شک جسے مٹانا چاہتا تھا بے شک وہ آج بھی باقی ہے. بے شک جسے رکھنا چاہتا تھا واہ واہ آج تو بھائی اس کے اپنے فالوورز اس کا نام نہیں لے رہے ہیں. بے شک بے شک ہے نا؟ اپنا اگر کہو نا کہ اپنے بچے کا نام رکھ لو اسی کے نام پہ تو میری جان کسی کے بچے کا نام یزید نہیں ہوتا. ایسا گالی بنا دیا حسین نے یزید کو، ایسا کردار اڑیا کر دیا بیٹے. ایک مرتبہ سب مل کر آواز بلند سلوات پڑھ لیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بے شک ایسا دیکھیں امام حسین کا کبھی انتقام دیکھو بیٹی. بے شک یزید کو لگا تھا میں جیت گیا. کل کی میرے ذہنوں میں ہے. جی 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 کل میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ مورش بھی اس کا، جی جی لشکر بھی اس کا، فوج بھی اس کی. بے شک تو لگ ایسے ہی رہا تھا جیسے یزید جیت گیا. جی لیکن جناب زینب نے تو پھر سیدھا کر دیا. واہ واہ بی بی نے کہا بھائی تو نہ گھبرا، تو میرے بھائی کو مار کے یہ سمجھ رہا کہ تو جیت گیا، مگر 1400 سال کے بعد فیصلہ ہوگا. کہ فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ تو دیکھنا جسے تم نے مارا ہے وہ قیامت تک زندہ بے ہے، شک بے شک جسے تو نے زندہ رکھا وہ قیامت تک مردہ. ایسا بی بی کا جملہ، ایسا جملہ حق کر دیا خدا نے بے شک کہ اب جب بھی کوئی کہتا ہے تو یزیدیت کو مردہ کہتا ہے، حسینیت کو زندہ کہتا ہے. اللہ اپنے پیاروں کے لفظوں پر اجر دیتا ہے. بے شک بے شک دعائے عرفہ میں اللہ نے کیا کہا؟ دعائے عرفہ میں مولا حسین نے کہا پروردگارا جس نے تجھے پا لیا، بے شک بے اس شک نے کیا کیا؟ جی جی جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا کیا پایا؟ پایا؟ بے شک بے شک یہ جملہ وہ آخری جملے تھے جو امام حسین نے دعائے عرفہ میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کے خدا سے گفتگو کی ہے. جی جی میں دعا دیتی ہوں تمہیں، میں نے کل کربلا منگوائی تھی نا تمہارے لیے. جی جی آج میں دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار تمہیں دعائے عرفہ میدان عرفات میں پڑھنے کی توفیق. الہی آمین. تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے بہت بڑی دعا دی ہے تمہیں. بہت بڑی دعا کس لیے دی ہے بتاؤ بھلا؟ کس چیز کی دعا دی ہے مجھے بتاؤ. میں نے کیا کہا ہے؟ ہاں، کیونکہ عام دنوں میں میدان عرفات میں آپ دعائے عرفہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ چاروں طرف باؤنڈریز لگی ہوتی ہیں، آپ اندر جا ہی نہیں سکتے ہیں. بیٹا آنٹی کو بٹھا لیں، درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بیٹا سب سے پہلے یہ جو میں نے ابھی دعا کی ہے میں نے کہا عام دنوں میں آپ جائیے نا، جی جی باؤنڈریز بنی ہوتی ہے میدان عرفات میں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں، باہر سے آپ مل کر
दुआ मैदान अरफात देखकर आप लोग उम्रे पे जाएं तो आप लोग देख के आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाहिद हज एक ऐसा मौका होता है बेशक जिसमें बैठ कर आप दुआए अरफा उस मैदान में पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने आपको हज की दुआ दी है कि अल्लाह आपको हुसैन के इश्क की दुआ, हुसैन का इश्क नामा मैदान अरफात में बैठ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा खुदा से गुफ्तगू की हुसैन ने बारे इलाहा जिसने तुझे पा लिया, बेशक उसने क्या खोया, बेशक जिसने तुझे खोया उसने क्या उसने क्या पाया। बेशक अल्लाह ने भी हुसैन के इस जुमले की लाज रखी। बेशक अल्लाह ने भी कह दिया है हुसैन अब तू दे, ताकतें इनके पास हैं, मैं तेरे पास हूँ, तूने मुझे पा लिया ना, अब तू देखना मेरा कमाल, तूने अकेले मुझसे मोहब्बत की, मैं दुनिया तेरी आशिक बना दूंगी, तूने अकेले मेरी बारगाह में सजदा किया, मैं करोड़ों जबीने तेरे रोज़े पे झुका दूंगा। हुसैन तूने वो किया जो तुझसे हो सकता था। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा जो कुछ हुसैन से हो सकता था बेशक बेशक उन्होंने वो खुदा के लिए किया। बेशक बेशक फिर अल्लाह से भी जो हो सकता था अल्लाह ने वो हुसैन के लिए कर दिया। बेशक अल्लाह का नाम है या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ऐ दिलों को पलटाने वाले। खुदा ने ऐसे दिल पलटाए लोगों के कि चाहे किसी को हुसैन के बाबा से दुश्मनी हो मगर वो हुसैन को जरूर लजपाल कहता है। ऐसा हुसैन के लिए कह दिया अल्लाह ने। बेशक बेशक चाहे कोई माने न माने, मौला हुसैन को सब मानते हैं। बेशक बेशक हुसैन सबका, कहते ना हुसैन सबका। अली सबका नहीं है, अली को कभी किसी ने नहीं कहा अली सबका, हर कोई कहता है हुसैन सबका। पूछा क्यों भाई, कहा क्योंकि हुसैन उस लजपाल का नाम है कि जो बंदों को अंदर से बदल कर उन्हें अली के काबिल बना देता है। अली हर एक की समझ में नहीं आता। पढ़ती रही और हम सुनते बेटा मेरी बात समझो, हम मजलिसें करते हैं, बेशक मकसद इमाम हुसैन क्या है इन मजलिसों के पीछे। देखो मेरी बातें जब तक मैं मैसेज न देके जाऊँ तो मैं पता मजलिस हम कोई हुल्लड़बाजी, जी जी हम कोई पार्टी के लिए नहीं आते। बेशक बेशक कुछ तो मकसद होगा ना इस मजलिस का। जी जी बिल्कुल क्या मकसद है? सिर्फ आपको रुलाना, नहीं सिर्फ आपका गिरिया देखना, नहीं इमाम हुसैन की माँ सिर्फ आपके आंसू लेने आती? नहीं बेटा ये मेरी बात समझो, रोना इबादत है, बेशक रोता वही है जो अपना होता है। बेशक बेशक अभी अभी तुम्हारे सामने आशूर वाले दिन बेटा रिकॉर्ड टूट गया भाई। हाँ जी 1,47,000 गाड़ियां कागान में फंसी खड़ी थी। जी जी क्यों फंसी हुई थी भाई? क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, जी जी आशूरा जुमे को था तो लॉन्ग वीकेंड आ गया। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार समझ में आ गया। 4 छुट्टियां मिल गई लोगों
لوگوں کو. اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی بات یہ ہے حسین بھی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. کسی کے لیے عاشورہ دنیا لٹنے کا دن ہوتا ہے اور کسی کے لیے عاشورہ لانگ ویکینڈ ہوتا ہے. ہے نا. تم باقیوں سے مختلف کیوں ہو؟ کیونکہ تم دعا ہو جناب زہرا کی. بیٹا دشمن چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں میری جان، ہماری مجلسیں ہماری عزت آ رہی، دشمن کو بری نہیں لگتی. مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا مجلسیں بند کرنا چاہتا ہے، بیٹا وہ ساری نہیں کرنا چاہتا. جہاں سے سوچ نہ ملے وہ چلائے رکھتا ہے. دیکھو میری بات سمجھنا، جب یزید نے امام حسین سے بیعت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا نا کہ حسین سے بیعت لیں، مدینے کا گورنر تھا نا عبید اللہ ابن زیاد. جب وہ مدینے کا گورنر تھا اسے مولا حسین کو بلا لیا. واقعہ ذہنوں میں ہے نا سارا. اسے کہا تھا حسین اکیلے آئیے گا، کسی کو ساتھ نہ لے کر آئیے گا. امام حسین نے کہا میں اکیلے جاؤں گا. دو لوگ نہیں مانے، ایک اکبر ایک عباس. اکبر نے کہا جس کا جوان بیٹا ہو وہ باپ اکیلے نہیں جاتا. عباس کہنے لگے جس کے ساتھ غلام ہو وہ مالک اکیلے نہیں جاتا. دونوں کے دونوں ساتھ چل پڑے مولا کے. اب کیونکہ ابن زیاد نے کہا حسین اکیلے آئے، مولا اندر چلے گئے اکیلے. ذہنوں کو سمجھنا بیٹی جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. اندر چلے گئے عباس اور اکبر باہر. مولا نے کہا جب میں لاؤڈ ہوں، جب میری آواز تیز ہو تو لوگ دروازہ کھول کے اندر آ جائیں. جیسے ہی مولا کی آواز ابھرے گی یہ اندر سمجھ آ گیا نا. اب اندر جو عبید اللہ تھا اس نے جو یزید کا میسج دیا امام حسین کو، جو پیغام دیا، وہ میسج کیا تھا بیٹے؟ وہ بیعت تو ہم کو ایک ہی جملہ سنتے ہیں نا. تو اس نے کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. یہ والا سنا ہے نا واقعہ سارا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ جو ہمارے برادران کیا ہے کانسیپٹ چل رہا ہے کہ حکومتوں کی جنتی، بادشاہت کی جنتی. دو بادشاہ تھے، امام حسین حکومت کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے. یعنی کربلا کے مقصد کو بالکل بیٹا ختم کرنا چاہا. اب ذرا غور سے سنو، واقعی یہ جو ہمارے برادران میں کانسیپٹ ہے نا کہ حکومت، یزید نے امام حسین کو حکومت آفر کی تھی. یہ غلط نہیں کہتے، اس نے آفر کی تھی. لیکن اس نے آفر پتہ کیا تھا؟ سنو، اس نے کہا امام حسین مدینہ آپ لے لیجئے، شام مجھے دے دیجئے. سمجھ آ گیا؟ مکہ و مدینہ کیونکہ آپ کا ہولڈ ہے یہاں پر، آپ کے نانا کا شہر ہے، لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، لوگوں کی پہچان آپ ہیں، آپ لوگوں کی پہچان ہے. ایسا کریں مدینہ یزید کہہ رہا ہے آپ رکھیں، مکہ آپ رکھیں، اور سیریا، شام اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ مجھے دے دیں. مسئلہ آسان ہے نا بیٹے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو مدینہ امام حسین کو دے کے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں اب سمجھاؤں. امام حسین کو مدینہ دے کے کہہ رہا ہے کہ آپ مدینے کا ممبر اپنے پاس رکھیں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ اپنے نانا کے فضائل پڑھیں، نانا کی باتیں کریں، نانا کی حدیثیں سنائیں. آپ سے اچھی نانا کی حدیثیں کون سنائے گا؟ آپ تو نواسے رسول ہیں، آپ سنائیں میرا نانا یہ کہتا تھا، میرا نانا یہ کہتے تھے، میرے نانا نے یہ کہا، میرے نانا نے یہ کہا، میرے نانا ایسے، میرے نانا ایسے. آپ صرف نانا کی باتیں کریں، آپ مجھے نہ چھیڑیں، میں آپ کو نہ چھیڑوں. سن رہی ہیں؟ بہت قریب آ کے سننا ہے آپ نے میری بات. آپ مجھے نہ چھیڑیں، میں آپ کو نہ چھیڑوں. آپ مدینے میں صرف فضائل پڑھیں، کسی مسئلے میں ٹانگ نہ اڑائیں. میں سیریا شام میں جو مرضی کرتا پھروں. آپ مجھے مت کہیے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ دین میں نہیں ہے. شراب نوشی کیوں کی، تماشا کیوں دیکھا بندر کا، کعبے کے اندر گھوڑے کیوں باندھے. میں جو کرتا چاہوں آپ مجھے نہ منع کریں، اور آپ جو مرضی کریں. آپ یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے کوئی خدا نہ خواستہ خاتم مظہر فعل حرام تو کرنا نہیں ہے. آپ صرف ممبر پر بیٹھ کر فضیلتوں والی باتیں کریں، اس سے کسی کو نہ پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ اپنا کام کرتے رہے، میں اپنا کام کرتا رہوں. اگر امام حسین یہ مان لیتے تو بیٹا آسان نہیں تھا.
जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ बोलना है। जी बिल्कुल इमाम हुसैन को ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी कि नहीं? कर लेनी चाहिए थी या नहीं? बोलो। अच्छा, आधे लोग कह रहे हैं कर लेनी चाहिए थी, आधे कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्यों? बेटा मजेदार माहौल, नहीं इज्जत मिली हुई है, बच्चे भी पास हैं, मिंबर भी नाना का है। सबसे आसान काम है ना मिंबर पे चढ़कर बातें करना। मतलब यजीद वही दे रहा था ना। मौला चाहते तो ये मान सकते थे। एग्जैक्टली आसानी थी बेटे, उनके लिए। यही मैं समझाना चाह रही हूँ सारे शियों को। मेरी बात समझ लो। पता चला इमाम हुसैन को उसने क्या कहा, सिर्फ नाना की बातें करें, जो मुआशरे में बुराइयां हो रही हैं, जो मैं कर रहा हूँ उसको मिंबर से बयान ना करे। अब समझ में आया तुम्हें ये कैसा मिंबर चाहता था यजीद, कि जिस पे सिर्फ बातें की जाए, जिससे ना अमर बिन मारूफ की बात हो, जिससे ना नही अनिल मुनकिर की बात हो, ना यजीद वक्त को बुरा कहा जाए, ना उसकी बातों को बुरा कहा जाए। हुसैन ने ऐसे मिंबर को ठोकर मार दी। हुसैन ने कहा नहीं चाहिए ये वाला मिंबर कि जिस पे नाना के दीन की सिर्फ फजीलतें पढ़ी जाए। अगर मैं बुरे को बुरा ना कह सकूं, अगर मैं बुरे को बुरा ना बुरे को बुरा ना कह सकूं, बेशक तो मेरे मिंबर पे बैठने का फायदा क्या है? मेरे मिंबर पे बैठने का फायदा क्या? मौला ने बैठकर बातें करना रिजेक्ट किया, मैदान में खड़े होकर वक्त के यजीद को ललकारना कबूल कर लिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि अब भी अगर कोई तुमसे ये चाहे कि मिंबरों से सिर्फ फजाइल पढ़ो, इधर उधर की बातें ना करो, ना तुम बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है, ना तुम बताओ कि इसराइल क्या कर रहा है, ना तुम बताओ कि फलस्तीन वाले क्यों मर रहे हैं, ना तुम बताओ कि विलायत फकी क्या है, तो पता चला कि अभी भी लोग वही मिंबर मांगते हैं जो यजीद ने हुसैन को ऑफर किया था। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद आए नारे वाली मजलिस पड़े और चले या हुसैन या अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा मेरी बात समझ रहे हो? इमाम हुसैन को सिर्फ और सिर्फ मजमा नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बेटा मजमा होता तो इमाम पता नहीं कितना मजमा इकट्ठा कर लेते। इमाम को खालिस मजमा चाहिए। थोड़े हो मगर 72 हो, थोड़े हो मगर कमाल हो। मेरी बेटियां जो तुम बैठी हो ना करबला में, तुम्हें मेरी जान हर तरह की कैटेगरी मिलेगी। आखिर जमाना चल रहा है ना, आखिर जमाना में अक्सर लोग कहते हैं बस बाजी फड़का के चली जाए मजलिस। फड़का के मतलब क्या, कि बस आप सिर्फ वो अली अली करवाएं और निकल जाएं। बेटा कभी कभी खैबर सुनना नहीं होता, उखाड़ना होता है। अब सुनने का दिन खत्म, अब उखाड़ने का दिन है। अब हर अली का चाहने वाला खैबर शिकन बनना चाहिए, जिसको ना दुश्मन तोड़ सके। जब दुश्मन तुम्हारी सादगी का फायदा उठा कहते गला चलाओ, आगे लग जाते हैं फटाफट। इन्हें बस जज्बाती बातों में लगाए रखो ताकि मकसद से हट जाए। जितने भी बानियान बैठे हैं, जितने भी सामईन बैठे हैं, बेटा बहैसियत अज़ादार हुसैन तुम पे जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि कहीं दुश्मन तुम्हें आपस में लड़वा तो नहीं रहा। दुश्मन तुम्हें अली के दीन से दूर तो नहीं कर रहा। दुश्मन तुम्हें अली के नाम पर आपस में बरगला तो नहीं रहा। बेटा तुम्हें बताऊं, करबला में 3 तरह की कैटेगरी थी। 3 तरह तारीफ पढ़ रही हूँ मैं, इसीलिए तारीफ पढ़ रही हूँ। बेटा ये वाला मौजू तुम लोग और नहीं सुनोगे।
चाहोगे? बेशक। तुम्हें भड़का भड़का के लोग चले जाएंगे और तुम उसी में खुश हो जाते हाँ हो। जी, असली है। माफी चाहती हूँ मैं हाथ जोड़ के, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं नहीं पढ़ी अच्छा, सही कह रही लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि जिसकी जरूरत है, बेशक। मेडिसिन में वही लिख के जाती हूँ कि जिसकी जरूरत होती है। इस वक्त थोड़ा बेदारी होने की जरूरत है, मजमा सोता बनी चाहिए हुसैन को। करबला में मैं 3 कैटेगरीज पढ़ूंगी, आपने फैसला करना आप किस कैटेगरी में। बेटा करबला में 3 तरह के लोग थे। एक जो साथ नहीं थे मगर आखिरी मिनट में साथ हो गए, पहुंच गए, बिल्कुल दिमाग कहाँ चला गया। बेशक बेशक साथ नहीं थे, रज कर खा पी कर पानी शानी पी कर जी, फुल बिल्कुल। फ्रेश माहौल में बेशक बेशक हुसैन से जुड़े आकर। वाह 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 मौला हुसैन आपको तो चाहिए था, बेशक आप कहते कि अब आ रहे हो, तो उस वक्त कहाँ थे जब तुमने मेरे घोड़े की रकाब को पकड़ा। बेशक, बेशक। समझ में आ रहा है ना? बेशक, अब बेशक। तुम आ रहे हो, अब तुम क्यों आए हो? पहले तुम्हें आना चाहिए था जब तुमने रकाब को थामा, अब क्यों आए? मगर हुसैन ने ना पूछा क्यों आए, ना ये पूछा कि उस वक्त क्यों नहीं आए। इमाम हुसैन ने हमें सिखा दिया कि अगर कोई आखिरी लम्हे पे भी आकर अपना दिल बदलना चाहे तो हुसैनियों की तरह खुले दिल से हाथ फैला कर, अकबर भेज कर, अब्बास भेज कर बेशक, उसका इस्तेमाल करो। बेशक 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 अंदर से बड़ा होना बेशक हुसैनियों की खासियत है। बेशक कि जो अंदर छोटे लोग होते हैं ना, मेरी बात सुन लो बेटा, दौलत बाहर से बड़ा कर देती है बेशक मगर अंदर से बड़ा हुसैन ही करते हैं। जो उनसे जुड़ता है हुसैन उसी को बुजुर्गी भी देते हैं। समझ आ रही है बात? एक करबला की कैटेगरी आए लास्ट मोमेंट पे, बेशक और तुम देखो इमाम हुसैन के साथ जो टोला था ना वो भी कम ज़र्फ़ों का नहीं था। बेशक बेशक पता नहीं कितने आला ज़र्फ़ थे, तभी तो हुसैन के साथ थे। वाह 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 हम बेशक जैसे होते ना, हम तो आपस ही में मन मना के इधर उधर निकल जाते हैं। समझ आ रही है? इतने आला ज़र्फ़ आप देखें, जो सबसे एंड पे आया बेशक बेशक वाहिद शहीद है करबला का जिसे गिफ्ट भी मिल गया। वाह 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 बेशक 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 आखिरी शहीद बेशक प्यासा भी नहीं है, बेशक यजीद के लश्कर से पानी शानी पी के, नाश्ता करके, तलवारें तेज करके, घोड़ा सादा ताजा दम लेकर, कपड़े शपड़े इस्त्री कर कर फुल डोज तैयार होकर जो आ रहा है, बेशक उसको मौला हुसैन ने इनाम भी दे वाह दिया। वाह 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 इनाम तो चलो दे दिया, वो उनके कर्म का कमाल है, बेशक दे दिया। वो किसी दुश्मन को भी खाली हाथ नहीं भेजते है ना। लेकिन मैं कहती हूँ मौला हुसैन आप तो मौला थे, वाह आपने कर्म कर दिया, ये आपका कमाल था। वाह मगर मौला सलाम है आपके साथ रहने वालों वाह। कि किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने जबान से जुमला नहीं कहा कि मौला इसको क्यों, हमें क्यों नहीं। हम तो 28 रजब से आपके साथ चल रहे हैं मौला, हमने तो हज भी बदल दिया मौला, हमने तो उम्रा भी नहीं किया मौला, हम तो आपके साथ यहाँ प्यासे भूखे 3 दिन से, अगर रुमाल अपनी माँ का देना था तो मौला हम में से किसी को दीजिए, इनको क्यों दे दिया। पता चला साथ ही इसलिए थे कि हुसैन की एक एक अमल पे उन्हें पूरा यकीन था, हुसैन से जुड़ने के लिए अंदर बड़ा होना चाहिए। पढ़ में हुसैन रही हो बेटे, समझो तुम 12वां। वाह 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 मैं पढ़ इमाम हुसैन रही हूँ, आपने 12वां समझना है। बेशक। जैसे आला ज़र्फ़ इमाम हुसैन के साथ थे बेशक। वैसे आला ज़र्फ़ 12वें के साथ होने चाहिए। जैसे वहाँ जबान पे शिकायत नहीं वैसे यहाँ जबान पे शिकायत नहीं। बेटा तुम सहाबी हो इमाम के। हाँ हाँ, सहाबी किसको कहते हैं? जो इमाम के साथ काम करे। अब ऐसा कभी ने देखा नहीं। बेशक देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसलिए तुमने कहा ना जिन्होंने देखा, नहीं नहीं देखना तो शर्ती नहीं है, वाह वाह जो इश्क रखे। वाह 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 अब ऐसे करनी को दलील बना के तुम्हें सहाबी कह रही हूँ। अब ऐसे करनी ने देखा नहीं मगर सहाबियत की सनद मिल गई ना, तो अभी मैं किसी आम छोटे मजमे से बात थोड़ी कर रही हूँ। मेरे सामने सारा मजमा 12वें इमाम के सहाबियों का बैठा हुआ है कि जो सारे आशिक भी हैं। अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल
अल्लाह जल अल्लाह जल या अली या अली या अली मदद हक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहाँ ये क्या नाम है, शाहिदाबाद जी? पढ़ूं या मसाइल पढ़ दूं? नहीं होती, प्लीज प्लीज थोड़ा सा और। पढ़ लो। जी जी प्लीज थोड़ा सा और। अच्छा मौला आ गए भाई, सवारी तैयार है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले को। नहीं होती प्लीज। आपने तुम्हारा नहीं काम मैं तो आपको लिया, मैं तो बेटा मैं तो तुम्हें पूरा तुम्हारे हिस्से का रिस्क लेने के लिए बैठी, वरना मैं तुम्हें पता घुमा के जाने में मास्टर हूँ। 10 मिनट लगाते मजलिस भड़का के ये जब हो जा, मसला ही नहीं है। लेकिन आप ये मेरे अपने बच्चे हैं, ये जो तुम सारी बैठी हो ना मेरी बेटियां हो, तुम्हें मैं ना डरखा के जा सकती हूँ ना घुमा के। बेशक बेशक यही तो मैं कह रही हूँ, जैसे इमाम हुसैन को कहा था ना आपका इलाका मेरा है, बेशक, वाह वाह। हाँ सर मेरे हैं, आप सब मेरे हैं। मैं मिंबर पे नहीं होती, आप सब मेरे पीछे होते हैं। बेशक ये आप सबकी तरफ से होती है मजलिस में। अपनी मजलिस में आप सबको शामिल करती हूँ। मैं कहती हूँ परवरदिगार जिन्होंने जिस वक्त भी मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे लिए दुआ की, अल्लाह मेरी मजलिस के सवाब में उन सबको शामिल कर। तो सबसे ज्यादा हिस्सा तो बेटा तुम लोगों का होता है, क्योंकि तुम लोग वाहिद हो जो वाकई खलूस दिल से मुझसे मोहब्बत करते हो। समझ आ रही है ना बेटा? तो अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी, पहली कैटेगरी, जल्दी जल्दी जी जी दूसरी कैटेगरी, जी एक और भी थी। वो कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी में इमाम जनाब हुर, समझ आ गया? बेशक दूसरी कैटेगरी में ज़ुहैर इब्न कैन। बेशक बेशक बेशक। ज़ुहैर इब्न कैन ये भी बहुत बड़े, ये ज़ुहैर इब्न कैन पता कौन थे? ये तो मौला अली को मानते ही नहीं थे। हिस्ट्री नहीं पढ़ी अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ज़ुहैर इब्न कैन 3 सहाबा को मानते थे। ये उस्मानी थे, मतलब उनके शजरे से थे। मौला अली को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये वाले कौन से थे? ये भी करबला में शहीद हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पता चला पीछे चाहे जिसके मर्जी साथ हो। वाह 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 वाह। कहीं और मिलूंगी तो मुझे बताना, मैं ज़ुहैर इब्न कैन खोलूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हुसैन मुकद्दर बदलते हैं, कैसे हुसैन दिल बदलते हैं। यही तो मैं बता रही हूँ। जिसने हुसैन के बाबा को नहीं माना, हुसैन ने उसको भी अपना बना लिया। ये कमाले हुसैनियत है। दूसरे ज़ुहैर इब्न कैन जो पीछे से किसी और के साथ थे, बेशक मगर वो मिल गए एंड पर इमाम हुसैन से। तीसरा बंदा एक और था करबला में। बेशक जनाब बेटा वो था ज़हाब, बेशक। नहीं ज़हाब, हबीब इब्न मज़ाहिब 2 खत लिख के बुलाया ना। ज़हाब, इसको पढ़ना। ज़हाब कौन सा सहाबी था? जो 28 रजब में मदीना से साथ चला, बेशक हज बदला, उमरा चेंज किया, प्यासा रहा, आशूर के दिन सुबह मौला के सामने आया, आके कहने लगा मौला हाथ जोड़कर, मौला मुझे लग रहा है बात बनने वाली नहीं है, तो मौला अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मौला मैं चला जाऊं। पता चला ऐसे लोग भी थे कि जो आखिरी लम्हे पर पूरी जिंदगी साथ देकर आखिरी लम्हे पर हुसैन को छोड़कर चले गए। मैंने तीनों कैटेगरियां तुम्हें बता दी। अब तुमने देखना है कि तीनों में से तुम किस में हो। अपने आप को समझो ताकि इमाम का नासिर बनने में आसानी हो जाए। अब सुनो जुमला सुनो। ज़हाब साथ क्यों था इमाम के? उसे लग रहा था मुज़ाकरात हो जाएंगे, उसे लग रहा था कि इमाम हुसैन से मुज़ाकरात होंगे, जैसे अभी मुज़ाकरात खेल रहे हैं ना बेटा। उन्हें लग रहा था कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, जैसे अभी नहीं हुए मेरा बच्चा, वैसे हुसैन से भी नहीं हुए। क्या हो गया शायद? तो मुझे टाइम बता दी कितने बजे निकालना है। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले समझ रही हैं? बेशक मैंने सिर्फ 3 पॉइंट आपको, मैंने पढ़ा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ घुमा दिया आपको। साहब किस चक्कर में था? उसे लग रहा था कि हुसैन के साथ होऊंगा, मुज़ाकरात हो जाएंगे तो मैं इमाम से कहूंगा कि मौला मैं आपके साथ रहूं, कोई ओहदा मुझे दे दें। बेशक मगर जब उसने देखा कि शहादतें हो रही हैं, दरमियान से चला गया। अब सुनो जुमला बेटा, मैं जुमला दे रही हूँ तुम्हें। इमाम हुसैन ने उससे कहा ठीक है साहब जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। पता चला इमाम जबरदस्ती भी किसी को नहीं बुलाते। इमाम ने कहा जाओ साहब जाओ, लेकिन इमाम ने एक जुमला कहा कि साहब मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे पास सवारी है, ना मेरे पास तीर है, ना मेरे पास ज़ादे राह है। साहब मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। साहब ने पता क्या कहा? कहने लगा मौला मैंने एक घोड़ा पहले ही पीछे
रखा है, आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उस घोड़े पे बैठूं और निकल जाऊं। अब जुमला दे रही हूं तुम्हें। मौला हुसैन ने पता क्या कहा? मौला ने कहा साहब तुम जाओ, इतना तेजी से निकलना कि मेरी आवाज इस्तगासा तुम्हारे कानों में हाय ना। हाय हाय इतने दूर निकल जाओ, इतने दूर कि तुम्हारे कानों में मेरी आवाज ना आए। मैं हाथों को जोड़कर कहूँ मौला आप जानते थे कि आपकी आवाज कहाँ तक जाएगी। मौला ये जो आज गर्मी में यहाँ बैठे हैं ना, ये भी खुद अपनी मर्जियों से नहीं आए हैं। मौला इनको भी बुलाया उसी इस्तगासा ने कि जो घोड़े पे सवार एक जख्मी मौला, पेशे मुबारक आंसुओं में तर, बेटा बगैर शर्माए हुए 2 मिनट के मसाइब, इसके बाद तुम जानो तुम्हारा मौला जाने। ये जो खाली सवारी है ना बेटा, इसका इस्तकबाल तुमने ऐसे करना है जैसे बागें कटी हुई। जुलजना जब खैमे में आया था ना, तो अली की बेटियों ने चादरें उतार कर कहा था, वाह मुसीबता वाह गुर्बता, आज ज़ैनब का मान मारा गया। अज़ादार ने इमाम आज का पुरसा बेटियों का, आज का पुरसा बहनों का, आज का पुरसा उम्मे रुबाब जैसी उन खवातीन का जिनके सर से चादरें उतर गई। बेटा दुआ करो कोई औरत बेआसरा ना हो। जनाबे रुबाब ने हुसैन से यही तो कहा था ना, हुसैन मेरा तो असगर भी नहीं है, मेरा तो सैयदों से रिश्ता ही खत्म हो गया। अज़ादारों असर के वक्त अजीब मंजर, असर के वक्त अजीब मंजर, एक सदाए इस्तगासा करबला में गूंजी। और वो सदा क्या थी मेरा बच्चा? अस्सलामु अलैका या ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या उम्मे कुलसूम। बेटा शर्माओ नहीं, मैंने बहुत बुलंद आवाज में पता क्यों नहीं पढ़ा, ताकि तुम अपने अंदर से मसाइल सुन के रो। आज हुसैन की गुर्बत का पुरसा है ना, दुआ करो कोई बेटी बाप के लाशे पे आखिरी मर्तबा ना है। अज़ादार ने इमाम जैसे ही हुसैन